Sir, with your permission, Chief Guest, our Honorable Chief Guest today, Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable CM Delhi, Sanjay Singh ji, Guest of Honor today, National Spokesperson and in charge of Punjab Political Affairs, our beloved Naresh Yadav ji, MLA from Mehrauli, Delhi, Himmat Singh Shergir ji, who is also barrister at law and in charge Legal Affairs Cell, all party of Aam Aadmi Party Punjab, Sucha Singh Chotepur ji, convener of Aam Aadmi Party Punjab, all other members of Aam Aadmi Party, are Parvesh Yadav ji, Honorary Secretary and pillar behind this function, Amit Rana ji, Member Bar Council of India, he is also youngest in all over India, otherwise in Bar Council of India. Shri CM Munjal ji, whom you are listening, Master of Ceremony today, 5-time member, Patriarch of Bar Council, former Chairman, and right now Chairman of Executive Committee of Bar Council, Jaiveer Yadav ji, 4-time member Bar Council, one of the most honest, incorruptible members, also guiding force of us, Jaiveer Yadav ji, Chairman Enrollment Committee and member Bar Council right now. At this point, I just want to share something about Jaiveer Yadav ji, although it's not occasion, but it's Aam Aadmi Party stage, so I guess I can take liberty of talking about honesty. मैं भी शेयर कर रहा था सीएम साहब से, नरेश यादव जी से, जब जयवीर यादव जी चेयरमैन थे तो उस वक्त जो ऑफिशियल गाड़ी मिलती है बार काउंसिल से, उसको 5 बजे जब ऑफिस टाइमिंग पूरे हो जाते थे तो यहाँ गाड़ी छोड़ के चले जाते थे, अपने घर कभी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस स्टेज पे हम ये बात कर सकते हैं, बाकी जगह तो हो सकता है इसको कोई बहुत बड़ी क्वालिटी ना माना जाए। देन हमारे बैठे हुए प्रताप सिंह जी, फॉर्मर चेयरमैन, लायन ऑफ हरियाणा, 2 times कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, many person of many qualities, also General Secretary of All India Bar Association, Karanjit Singh ji, our former secretary, first-time member Bar Council, Rajiv Kaswan ji, our big brother, also former secretary, and N.K. Singla ji, also 4-time member Bar Council and former chairman, a very big personality from Patiala region, another vice chairman, vice president GBS Jilloji of mighty High Court Bar Association, Sumit Jain ji, honorary secretary, and other president bar associations, and my media friends and young entrants. First of all, I am very glad I am sharing the stage with such dignitaries, and that too from core of my heart. It's not formally. I'll speak in Hindi. So first to my young entrants. So I guess among all of us, if someone can say it's my big day, it's big day of my life, it's I guess you young entrants who are about to get license. So yes, जोर से हो जाए क्लैप एक बार young entrants के लिए करेंगे। My friends, we could have sent these licenses to you by postcard. आपको पोस्ट से भी भेज सकते थे, लेकिन यहाँ बुलाने के 2 पर्पस हैं। First, the sense of achievement, the sense of deja vu you are carrying today. यहाँ इकट्ठे हुए हैं, असेंबल हुए हैं, सब मिलके चल रहा है, फंक्शन है, आपको भी लग रहा है आज आप एक नए जीवन में इतने अच्छे तरीके से प्रवेश कर रहे हो। This is a sense of achievement for you and for your parents also. Worked very hard. और for young entrants, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनके बच्चों ने जो वहां कुर्बानियां दी हैं। Secondly, when you get licenses from some persons like CM Arvind Kejriwal ji or some other persons who have made their mark in their life in society, जो सोसाइटी में रोल मॉडल होते हैं। अब now to you people, media people, they're constantly asking me, see, is it a political function? First thing. Secondly, what is the criteria of choosing a chief guest in these kind of functions if it's not political function?
And third is, if you have chosen a CM outside of Punjab and Haryana, then how do you justify that? These are the main questions which media is asking me for past quite time. I'll answer them in the end. जो मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें धीरे धीरे मैं आंसर्स में ले आऊंगा. First, it's your big day to I will say few things to you people, young entrants. See, previous speakers have said much things about how you should behave in your coming life. Now I'll tell you a simple formula. I'm also engineer, I'm also MBA, so I guess it's supposed to be this a formula. Formula is rice to rice. Rice means chawal ka dana rice. Rice to rice. How you will rise in your life. R stands for respect. And mark my words, I am passed out in only 2010. It's just been 6 years I am into this profession and I am enjoying it. How? Respect your elders. If you won't respect your elders in this field, you are not going to rise in this profession. Mark my words. You have to respect. Secondly, I comes from integrity. As Pratap Singh ji has rightly said, never cheat. Don't try to cheat your client. They are more smart these days. Secondly, never try to cheat at court. For winning 1 or 2 cases, you might cheat at court. You may win a case, but you will lose the case. You will lose your reputation forever. Reputation बनाने में बड़ा जमाना लगता है. इस प्रोफेशन में reputation will precede you always. नाम सुनते कह देंगे ये तो ऐसा. आप नहीं कहोगे साथी हम सब कंपटीटर हैं ना आखिर में. तो integrity is must. Then comes C. C says confidence, commitment, and courage. Confidence is must. Confidence comes from 2 things. Firstly, it's by birth. पैदाइशी है, confident है. Here, this profession is for you. Otherwise, confidence comes from knowledge. You should have mastery over the facts when you enter in a court. आप जब कोर्ट में एंटर होने वाले हैं तब आपको फैक्ट्स के बारे में बताओ. ये बताओ आपने क्या करना है. कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नॉलेज एम्पावर्स यू. अब आप कोर्ट में केस लड़ने जाओगे तो बिना नॉलेज के तो जा नहीं सकते. जो जाएगा उसमें चाहे बाय बर्थ हो उसमें कॉन्फिडेंस आ. तो कॉन्फिडेंस इज फर्स्ट. सेकेंडली कमिटमेंट. झूठ मत बोलो. अगेन दैट पार्ट ऑफ इंटेग्रिटी कम्स. एंड थर्ड इज करेज. सी इन फर्स्ट फ्यू 5 years, yes, it is a harsh reality. In this profession, you need your parents' support, your family support much in first 5 years. शुरुआती सालों में आपको अपने परिवार का सहारा चाहिए, क्योंकि एकदम ही क्लाइंट्स आपके पास नहीं आते. उन 5 सालों में परिवार के सपोर्ट, बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज मोरल. उसके अलावा आप लोगों को खुद में हौसला भी करना पड़ेगा. बहुत सारे आपके सीनियर्स भी जिनसे आप मिलते हो, ये हमारे सीनियर भी कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस चल पड़ती है वो बाकी सब चीजों को भूल जाता है. चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई भी बड़ा फील्ड हो, उस प्रैक्टिस एडवोकेट के आगे सब बोना हो जाता है. पैसा भी इतना बरसता है, आदमी सोचता है बहुत हो, बट उस मुकाम तक जाने के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा. इसमें तो आपको वेट करना है. और साथ में वो आजकल व्हाट्सएप पे भी आता है, व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता है कि जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कब देखना फिजूल है आसमान का. डरने की जरूरत नहीं, अब तो इसमें टूट पड़ो. और मैं उन लोगों को खासकर कहना चाहता हूं जो आते ही कहते हैं मैं तो तैयारी कर रहा हूं, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाऊंगा. ब्रदर, इट्स अ गुड थिंग. आवर कंट्री रिक्वायर्स दोज काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट्स. बट साथ साथ जो एडवोकेसी करते हैं उनकी रीस नहीं कर सकते हो. जो लोग आप में से, हमारी एडवाइस है, इट्स आवर एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस की तरफ ध्यान कीजिए. हाँ, अगर आपको लगता है इन योर फ्यू फर्स्ट ईयर्स कि आप एडवोकेसी के लिए ठीक नहीं है, आप सोलिसिटिंग के लिए ठीक है, आप ड्राफ्टिंग के लिए ठीक है, आप टीचर बन सकते हैं अच्छे, आप
कुछ और काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, तो पहले फर्स्ट फ्यू 1 और 2 ईयर्स में डिसाइड कर लो, पहले ही कर, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, E for excellence. It means if you follow these dictums, then you will rise in your life, rise to rise. And apart from this thing, one thing that you must carry with you all over your life. Our seniors have told us, we are passing it to you. This profession is very demanding. And I mean it, very demanding. पैसे लेते हो क्लाइंट से, उसकी प्रॉब्लम मिलेगी, समस्या मिलेगी. So, brother, in your profession, please take care of your health. आपकी हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है. वकील कई बार करते हैं, ये गांठ बांध दो, डिसिप्लिन लाइफ जिए, आप जिए, और साथ में हेल्थ का ध्यान रखें. नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ. नाउ आई एम कमिंग टू, आओ सर आप प्लीज, हमारे DRT के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं अपना सरदार हरचरण सिंह जी, सर वेलकम जी. प्रवेश वेलकम सर, आओ. Let's have a big round of applause for Sardar Harcharan Singh ji in attending and everybody knows. Now I am coming to why we have chosen Honorable Chief Guest CM Kejriwal ji and his party and his team here. See, I'll tell that not by narration, but by experiences which I have in past 1 month. It won't be boring then, I guess. See, जब से I am also from मैं हिंदी करता हूं बल्कि सबको समझ आ जाए. मैं एक पॉलिटिकल परिवार से हूं, हरियाणा के, और मेरे परदादा जी भी सरपंच थे, दादाजी भी सरपंच चेयरमैन रहे, फादर साहब भी एक्टिव पॉलिटिक्स में MLA भी रहे, और मैं आप सबकी इतनी बड़ी सरदारी की गवाही में बड़े खुले दिल से कहता हूं कि मैं एक पूरी ईमानदार बाप का, ईमानदार खानदान का वंशज हूं. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन वी वर रीडिंग इन हिस्ट्री बुक्स, इन 1947 वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस. 1947 में आजादी मिली. जो हम पढ़ते हैं, शुरू में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे या और पॉलिटिशियंस होते थे, उनकी समाज में लोगों में बड़ी इज्जत होती थी. आप भी पढ़ोगे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो नारा दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया, लोग छोटी छोटी लोग, राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, छोटी छोटी बात पे लोग ऑनेस्टी को बहुत बड़ा मानते थे, नीता भी, और समाज के लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते थे. धीरे धीरे आफ्टर 2 or 3 decades, what has begun in the era when we are born, 1990, I am born in 1990. तो क्या देखने को मिलता है? Now cunning, corrupt and ruthless politicians have become role models of the society. कहते हैं यार ये तो बड़ा तगड़ा पॉलिटिशियन है, ये ऐसा ही बनना था, बस ये यार तू काम करवा देगा हमारा. हाँ जी, बोला जी है, पकड़ो 5 लाख, मेरा लड़का पुलिस में लगवा. कहते हैं उसने लगवा दिया 5 लाख देके. कहते हैं जी लीडर जैसे वो 5 लाख में काम करा देता है. कमाल हो गया, ये भी लीडर हो गया. What means simplicity is considered to be naive, nay foolish. कहते सिंपल है तो, सिंपल क्या है? आदमी किसको मानता है लीडर? उसके जैसे अपने पंजाब के सिंगर्स आते हैं ना कभी शादियों में, दैट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दोस पॉलिटिशियन. कोई शादी चल रही होगी पंजाब में थोड़ा रिवाज भी है ऑर्केस्ट्रा का, तो जो पंजाबी सिंगर आएगा अपने साथ में 20 बाउंसर लेके आएगा, एकदम घुस जाएगा. कमाल है यार. ऐसे ही पॉलिटिशियंस को हम धीरे धीरे लाइक भी करना शुरू करें. जो सिंपल आता होता है, इसका क्या है? सरलता को लोग कायरता समझना शुरू करें. कहते जो सरल है, इसका क्या है? सिंपल है. तो क्या हो गया? टू लिव अपॉर्चुनिस्टिकली, मौकावाद से जीना, इट हैज बिकम रूल. मौका मिलते कर लो, मौका मिलना चाहिए, मौके के हिसाब से अपने आप को ढाल लो. जहां आप करप्ट हो जाओ, फिर जहां ठीक होगा हो जाओ. ऐसे लीडर्स का जमाना आना शुरू हो गया है. आज सारे देखते हो, सारे रोल मॉडल ही वो हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी वो हैं मैक्सिमम.
नोट से सारे के सारे, टू लिव बाय प्रिंसिपल्स इज बिकम इम्पॉसिबल। आम आदमी के लिए नहीं, लीडर्स के लिए भी जीना बड़ा मुश्किल हो गया। रीजन बिहाइंड, मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं यहां, आप लोग जो राजनीति में जो गिरावट आई उसके लिए काफी हद तक, नॉट टेक इट पर्सनली, थोड़े थोड़े जिम्मेवार आप भी हो। जैसे जैसे बाकी सारी चीजें करप्ट होती गई, जैसे सिटीजन है जिसने वोटर है वो करप्ट होता गया, उसको दारू की बोतल चाहिए, उसको पैसे चाहिए। मीडिया भी कहती है मेरा पैकेज बताओ भैया, आखिरी साल आ गया इलेक्शन का, अब बताओ इसमें आखिरी साल में मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या सिस्टम होगा मेरा बना के। तो इस सारे सिस्टम में जब सारे ही करप्ट हो रहे हैं, लीडर भी करप्ट, जिससे वोट लेनी है वोटर भी करप्ट, जो उनको दिखाना चाहिए मीडिया, पुलिस, प्रशासन सब करप्ट, उसमें उस माहौल में सिर्फ दो ही तरह के आदमियों को दुख पहुंचा। वो कौन थे? वो दो तरह के आदमी थे। एक, एप्टली सेड बाय मिस्टर संजय सिंह, न्यायपालिका। न्यायपालिका इस देश में ना झुकी, ना झुक रखी और ना झुकने वाली है। आप लोग सारे बैठे, न्यायपालिका ने इस बात पे दुख मनाया और हमेशा करप्शन का या इन चीजों का, रेड टेपिज्म का मुकाबला। सेकेंडली, ऐसे बहुत लोग थे, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में मेजोरिटी में ऐसे लोग थे, 100 में से 70% ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे अरे क्या होगा। मैं तो कहता हूं हमारे हिंदुस्तान में 70% आदमी बड़ा ईमानदार है, तो 30% है या 20% है, उन्होंने हम लोगों को धक्का कर रखा, गिर भी रखा। नाउ एज आई हैव रेड इन दी poems of Brian Saab, in the muckiest, in the dirtiest muck we find diamond. बिल्कुल कीचड़ में एक कमल खिलता है, तो उस वक्त एज राइटली सेड बाय सी मुंजाल जी, तभी पार्टी का राइज हुआ। एनी हाउ वो चलता रहा, सारा आपने देखा। आई डोंट बिलोंग टू आम आदमी पार्टी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं नहीं हूं। मेरा इंडिपेंडेंट व्यू सुन लो। मैं 1 महीने से मैं किसी मेंबर के इंस्टांस पे कहा कि केजरीवाल जी को बुला के लाऊं। बात तो ठीक है, अब 2 साल भी हो गए पार्टी को। लोग पहले तो यही सोचते थे, मेरे जैसे भी, यार ये तो पहले की बातें हैं। पावर टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए मैन एंड पार्टी। जब पावर आती है ना, वो बर्बाद करती है। मैं कहा 2 साल भी हो गए, अब तक भी कोई एलिगेशन नहीं है, और रेदर कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रही। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स तो इस देश की बिल्कुल यूं का यूं आपको देखा हाल है कि इसी बात पर पॉलिटिक्स। मैं पार्टी में तो पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। अच्छा, मैं खुद ईमानदार परिवार से हूं, बड़ा मैं समझता हूं कितनी मुश्किल से गिरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है आदमी को। हर रोज ऑनेस्ट पर्सन हैज टू ट्रेवल हिज पाथ वेरी केयरफुली एवरी डे। एक दिन भी छोटा सा इंसिडेंस हो गया, ये तो हम ये सोच लो कि भाई बिल्कुल सफेद अपना एक कुर्ता पजामा पहन के, सफेद कपड़े पहन के, काजल की कोठरी में से निकल, एक भी छिटा लग गया तो कहते हैं हो गया भैया, ये भी देखो, ये भी वैसा ही हो गया। तो 2 साल बीत गए, कमाल कर रखा है। एक भी ऐसा इंस्टांस नहीं आया जिसमें आप पे इल्जाम लगा। सैल्यूट टू यू सर उस बात के लिए। आपने 2 इंस्टेंस ऐसे किए, पीपल लाइक मी हु अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। क्या कहते हैं, आपके मुकदमा आया शुरू में, आपके लॉ मिनिस्टर आपके बड़े करीबी थे तोमर साहब, उन तोमर साहब पे आ गया कि भाई इनकी डिग्री फर्जी है। फर्जी थी या नहीं थी वो तो अभी चलता ही है, लेकिन आपने उनको साइन कर दिया। बहुत बड़ी बात है सर। आज के जमाने में तो करोड़ों लाखों करोड़ों के स्कैम करके भी वहीं के वहीं लोग रहते हैं कि भाई मेरे पास इतने 10 मेंबर पार्लियामेंट है, ये तुम्हारा आदमी रहेगा। आपने उसको साइन कर दिया। फिर आया आपके एक और मेंबर थे, सॉरी आई गेस आई शुड नॉट कोट देयर नेम्स। देयर वाज वन मोर एमएलए हु वाज मिनिस्टर, अपॉन हिम एलिगेशंस कम ऑफ करप्शन। सर आपने, मैं तो अभी देख रहा था, आपने ऑडियो क्लिप्स उसकी पब्लिक को दिखाई, मीडिया को दिखाई और उसको साइन कर दिया। सर तो बहुत शेर जैसा डिसीजन है, ये तो आम आदमी में बस की बात नहीं इतनी बात सोचना। मैं सर बात कर रहा था, मेयर प्रवेश यादव जी, सेक्रेटरी साहब, अपना संदीप यादव जी हैं, एडवोकेट हैं रेवाड़ी से, नरेश यादव जी के दोस्त भी हैं, हमारे एडवोकेट साथी हैं, उनसे बात कर रहे थे। बात की, नरेश यादव जी कहते हैं बड़े सिंपल हम्बलनेस से, आओ सर संजय सिंह जी से मिलवा देते हैं, तो सीएम साहब से चलते हैं। मैं कहता हूं सर इस हिंदुस्तान में, मुझे नहीं पता, पंजाब हरियाणा के अंदर तो
एमएलए मंत्री एंड लीव अलोन चीफ मिनिस्टर से बात करना ही मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है मिलना। आप मिला के देखो फोन, एमएलए साहब फोन ही नहीं उठेगा, फोन उठ गया तो बात नहीं हुआ, बात हुई हाँ वहां जाना पड़ेगा। कमाल है। एक्सेसिबिलिटी इज द मेन इशू। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, किसी और का गए जी संजय सिंह जी तो इस हर वक्त ही करते थे, मैं यहां हूं, अपना पूरा गाइड कर रहे थे। सीएम साहब के पास गए तो सीएम साहब के वेटिंग लॉज में बैठ के वेट कर रहे थे, हमारे टाइम आने वाला था। तो नरेश यादव जी क्या कहते हैं, मैं तो ये देख के रहा हूं किस तरह की पार्टी। यादव जी कहते हैं भैया मेरा तो इतना ही हो गया, मैंने अब आपको सबसे मिलवा दिया, अब ना आप अपने आप आ जाए। आपने भाई साहब जो गेस्टर दिखाया वोंट फॉरगेट दैट गेस्टर। आज के जमाने में तो ये है कि बीच का जो सिस्टम, बस जो बीच में लाइन में आता गया वो उनका लाइन में बनता चला गया, अब लाइन में बनना ही नहीं चाहते। मैं तो ये देख रहा था मेरी कमाल है इन बंदों का। सीधा विभाग से मिलवा दिया, सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने यस की, और सर हम जब हम जाने लगे आपने खड़े हो गए, मैं कहा सर वी ऑल आर डीपली इम्प्रेस्ड। मैं कहता हूं सीएम तो लीव अलोन के आपने हमें बैठने दिया, मैक्सिमम सीएम तो ऐसे हैं कि भैया वो बैठे रहेंगे, वो तो खड़ा होना दूर हो, वो हमें बैठने के लिए कहते हैं, यही बड़ी बात है। उसके बाद सर रात को हम वहां बैठे, मैंने संजय सिंह जी से मिलते 10 बजे, भैया अपने पंजाब हरियाणा के किसी एमएलए से मिलना हो तो कहां मिलेगा? 10 बजे संजय सिंह जी को फोन किया, और मैं सोचा तो पंजाब में पंजाब के प्रधान बने हुए थोड़े बहुत तो बिगड़े होंगे। 10 बजे फोन किया, 10:30 बजे हम पहुंचे, 5-7 आदमी बैठे, सिंपल जाके हमारे साथ बैठ गए। अपना नीचे वो बिछे हुए थे, मैक्सिमम आदमी वहां बैठे थे, वहां जगह नहीं तो वहीं बैठते, इनके घर में नीचे है सब, वो कालीन बिछा हुआ नीचे बैठे, ये भी नीचे बैठते, वहां बैठे, थोड़ी देर बात की। उस वक्त सर मैं नाम तो लेता, किसी मीडिया चैनल का फोन भी आया, मीडिया चैनल से आपने बात की, संजय सिंह जी यू आर लायन, आज बोलता भी देख लिया आपको, यू आर इम्पर्चर्वेबल एंड स्टोइक, आप हिलने वाले नहीं हो, आप सॉलिड हो। हम आपके इस बात से और बड़े सिंपली आपने सर का ऐसे कर लिया, इसका मतलब हाँ। फिर यहां आके सर हम प्रोग्राम लेंगे, तो हमारे बैरिस्टर साहब हिम्मत सिंह शेरगिल भी आए, कहते फोन करके मैं आता, आ जाओ भाई। इनिशियली हमने ये सोचा था कि यार इसको हमारा ही फंक्शन रह जाए, और तो आम आदमी पार्टी भी चलो सारे हमारे मिलने वाले हैं। तो हिम्मत सिंह शेरगिल जी आए, मैं बैठा था, मेरा फर्स्ट, डोंट टेक इट ऑन पर्सनल शेरगिल साहब, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था आपके बारे में, क्या गोल मोटो हमारा दोस्त आ गया, ये अपना सोप सा गाय। थोड़ी देर में बात करनी शुरू कीजिए, नाउ विद व्हाट ट्रिमेंडस फेथ एंड ज़ील, कितने विश्वास के साथ आपने, यू आर डिस्कसिंग विद अस पॉलिसीज ऑफ द आम आदमी पार्टी, स्ट्रेटजीज ऑफ आम आदमी पार्टी एंड व्हाट पॉलिसीज। अब हमसे ये कह रहे हो, अब अगर पंजाब में बन गया एमएलए एमपी, सर वो एमएलए ऐसे ऐसे अकाउंटेबल होगा, उसके ऊपर ये चेक्स होंगे। मैं मन मन में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा और थोड़ा थोड़ा हंस रहा, मैं ऐसे थोड़ा होता है, एमएलए तो काटते, एमएलए ये होता है, वो हमने जो देखे हुए हैं। तो जी अपना थोड़ी देर बात चलती रही, स्ट्रेटजी बात करते रहे थोड़ा थोड़ा, फिर जाने लगे तो उन्होंने एक ऐसी चीज कर दी मेरी जिंदगी में पहली बार। आपने क्या किया, वी 5 मेंबर बार काउंसिल, मैनी ऑफ अस सिटिंग हियर इन रूम ऑफ जस्ट, यहीं ऊपर बैठे थे, जब जाने लगे बिल्कुल, तो कहते हैं, इन्होंने एक वीडियो निकाला अपने फोन में से, और उसमें क्या था, संजय सिंह जी वाज सिंगिंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स एट सम हाउस। बड़े सारे गाने लग रहे, पूरे देशभक्ति गाने। मेरे तो मन में इमीडिएटली आया, पहले तो हंसे थोड़ा सा, मैं यार ये क्या है, क्या हो रहा है। उन्होंने गिल साहब ने, शेरगिल साहब ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सर आपके जिस भी पार्टी में आप देखते हो, आपने किसी को देखा है ऐसे, किसी को घर पे पब्लिकली, तो यहां मैं भी गा दूं, पब्लिकली तो यहां मैं भी गा सकता हूं, आपने घर में किसी को देखा है? गिल साहब सैल्यूट टू यू संजय सिंह जी, मेरी तो बिल्कुल आंखें खुली रहेगी, हम सारे बैठे हैं यहाँ, 500-600 है अपना, आप ये सोचो मैं भी आप जैसा ही हूं, क्या हमने कभी अपने घर पे भी गाना गाया है पैट्रियोटिक? सोचा भी नहीं, मुझे लगता है अंताक्षरी भी खेलते हैं, उसमें भी कोई पैट्रियोटिक गाना नहीं आता। तो सर आप लोग किस, मैं तो कहने का मेरा मतलब, मैं जिससे मिल रहा हूं, फिर एक सतवीर वालिया जी आ गए आम आदमी पार्टी के, बोला जी मैं कार्यकर्ता हूं, कोई नहीं, इन्होंने ना कोई नाम लिया ना कोई बात नहीं, कहा जी मेरी ड्यूटी लगा देना, हमारी ऐसे कर देना। मैंने कहा सर हमारा पॉलिटिकल मतलब जी मैं वकील हूं, नहीं आओ,
व्हाट आई वांट टू से, अब जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा, मैं जिस भी आदमी से आपकी पार्टी में मिल रहा हूं या हम मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग इम्प्रेस्ड, हम आपसे इंप्रेस हो। देयर इज समथिंग इन योर पार्टी विच इज अट्रैक्टिंग, कुछ ना चीज तो है आपकी अट्रैक्ट कर रही है। सो आई नो you guys are holding your heart to listen to your heartthrob Arvind Kejriwal ji. I guess I should not be taking much long, but I think मेरा डिसीजन बुलाने का गलत नहीं है। रीजन बिहाइंड कि जिसको आप बुलाते हो वो सोसाइटी का रोल मॉडल होना चाहिए। हमने बाहर की स्टेट से बुलाया सर, हमने कोई लॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की। सारे वकील साहब बैठे, एक बात। दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों से जो प्रेशर हम फील कर रहे हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए, मैं ये सोच के हैरान हूं उससे कितना बड़ा प्रेशर अरविंद केजरीवाल जी फील कर रहे हैं दिल्ली सरकार को चलाते हुए, व्हेन ही इज फाइटिंग विद द माइटी कांग्रेस, वो माइटी सेंटर से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सरकार चला रहे हैं। ही इज रनिंग ए सक्सेसफुल गवर्नमेंट। जैसे संजय सिंह जी ने कहा, 2 बार मुनाफे वाला बजट दिया, वो कब? जब इनके पास दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके अंडर नहीं है, एमसीडीए म्युनिसिपल कमेटी, एमसीडी जो हर जगह देती है परमिशन, वो इनके अंडर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है वो इनके अंडर नहीं है। सर उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो? आप जो बताया, आप वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हो, जो आपके पास अवेलेबल है। आपने पानी वहां पहुंचा दिया, दिल्ली में मेरे दोस्त रहते, दिल्ली सबकी है, जहां पानी कभी आया नहीं। आपने बिजली, you have condoned all the water bills, आपने सारे पानी के बिल माफ कर दिए। आपने जो बिजली के बिल आ रहे हैं आजकल, तो बिजली के बिलों में आपने कटौती कर दी, आपने रिड्यूस कहता नहीं कैसे किया आपने जादू, हमारे तो रोज बढ़ के ही आते हैं। इट मीन्स हाँ सर, और अब डेयरिंग ये ऑड इवन वाला सर, थोड़ा एडवोकेट्स पे तो रिलैक्सिंग कर दो, एटलीस्ट जो हम बाहर से जाते हैं हमारे को तो सर बड़ा होता है। तो इट मीन्स चीफ गेस्ट साहब, यू आर रनिंग ए सक्सेसफुल गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट नथिंग इन स्पोर्ट फाइनेंशियली और एज वेल, उसके बावजूद भी आप सरकार चला रहे हो। सर हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे लगता है आप सब, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मेरा डिसीजन इनको बुलाने का क्यों सही है। Not taking much long. Yes, let's have a huge round of applause for Kejriwal ji and his team. I guess we should give a standing ovation to him. Please. Thank you, please. So, thank you for patiently listening to us. Wish you a great future ahead. और सारे प्रधान हमारे बार एसोसिएशन के और मीडिया साथी आए हुए हैं, खाना लेके जाएं। और आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है बार काउंसिल में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।